Hello student of class 9. Today we will study about the third equation of motion. Yesterday we will study about first and second equation of motion. There are three types of equation of motion: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half ad square, and third v square is equal to u square plus 2as. Today we derivate the third equation of motion: v square is equal to u square plus 2as. Derivation of third equation: you know v is final velocity and u is initial velocity of object, and s is distance covered by the object, and a is acceleration produced in the object. On squaring both sides to equation first, v is equal to u plus at. On squaring both sides to equation first, v square is equal to u plus at to the whole square. Then v square is equal to u square plus 2u at plus at to the whole square. It is described with a plus b to the whole square, u plus at to the whole square described with a plus b to the whole square. You know very well a plus b to the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Or you say this, the formula a plus b to the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. You also say this, a square plus 2ab plus b square. So v square is equal to u square plus 2uat plus a square and t square. v square is equal to u square plus 2uat plus 2 upon 2. v common 2a, so they divide by 2 in the equation and multiply with 2 in the equation of numerator and denominator. We multiply 2 in the numerator and divide in denominator. So v square is equal to u square plus 2a. 2a is the common in the equation, so 2a common, and rest of ut is written, plus 2a is common, and rest a t square upon 2 is written. So v square is equal to u square plus 2a and ut plus half at square. We write this ut plus half at square also. So v square is equal to u square plus 2as, because the whole value is equal to s, because s is equal to ut plus half at square. So we say ut plus half at square is equal to s. The third equation is derivated. It is the third equation of motion: v square is equal to u square plus 2as. In हिंदी, गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हम इसका डेरिवेशन करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, उसका हम दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर देंगे. ये v स्क्वायर हो जाएगा. u प्लस at टू द होल स्क्वायर को हम a प्लस b टू द होल स्क्वायर से तोड़ देंगे. a प्लस b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. कुछ लोग ऐसे याद करते हैं a प्लस b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दोनों सही हैं. तो यहाँ पर इसको हम तोड़ देंगे u प्लस 80 टू द होल स्क्वायर को a प्लस b स्क्वायर टू द से
तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2uat, 2ab का 2uat प्लस 80 टू द होल स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2uat, 80 का होल स्क्वायर जो है वो a का v स्क्वायर होगा और t का v स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर भी हो गया और t का स्क्वायर भी हो गया। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 2uat, ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है और नीचे हमने 2 का डिवाइड कर दिया है, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 2 को हम काट दें फिर वही हमें मिल जाएगा, अगर 2 को हम काट दें तो फिर हमें a स्क्वायर t स्क्वायर मिल जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें इस इक्वेशन में से, इस खंड में से हमें 2a कॉमन लेना है, इसलिए हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे डिवाइड किया। अब हमें यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a हमने कॉमन ले लिया इन पूरे में। जब पूरे में हमने 2a कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा हमारा u और t, 2a कॉमन हो गया, बचा u और t, ut हमने यहाँ लिख दिया प्लस 2a यहाँ कॉमन हो गया, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ a बचेगा, 80 का होल स्क्वायर 80, यहाँ होल 80 का स्क्वायर अपॉन 2 बचा है। अब ut प्लस 80 का स्क्वायर अपॉन 2 जो है उसको हम ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा फार्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, क्योंकि s जो है वो ut प्लस हाफ 80 के स्क्वायर के जो है समान है, बराबर है, इसलिए इसका मान हम s के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है s। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या जो है तीसरा इक्वेशन है मोशन का, ठीक है, ये आपका डेरिवेट हो गया। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचा है आपके इस लेसन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है अगर कोई धावक कोई सर्कुलर पैथ है, मतलब कोई गोल गोल सा मैदान है, उसमें अगर वो चक्कर लगा रहा है तो इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो गोल गोल चक्कर अगर लगा रहा है तो वो 3 दिशाओं में मुड़ता है, कितनी दिशाओं में? 3 दिशाओं में वो मुड़ता है सर्कुलर पैथ पर। और अगर रेक्टेंगुलर पैथ है या स्क्वायर है तो वो 4 डायरेक्शन में मुड़ेगा। इसी प्रकार जो है अगर वो खटभुज है, हेक्सागन है, तो उसी प्रकार को हेक्सागन है तो वो 6 डायरेक्शन में मुड़ता है, ऑक्टागन है तो 8 दिशाओं, मतलब कि ऐसे ही वो मुड़ता चला जाता है। अगर इसका हमें वैल्यू निकालना है, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई r। अगर इसकी हमें चाल निकालनी हो या हमें वेग निकालना है तो वेग निकालने के लिए क्या आता है? v इक्वल टू s अपॉन t, चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसकी कितनी है या डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, जो गोल गोल चक्कर घूम रहा है, तो यहाँ पर आकर के ये 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r, क्योंकि ये दूरी जो है वो 2 पाई r के बराबर है, ये परिधि है, इसकी सर्कमफ्रेंस है। तो v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t से हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब इसमें बचे हैं न्यूमेरिकल। आपके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम आपको फोटो के जरिए सेंड करेंगे, उसमें भी समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम भी लगा के आपको बताएंगे। इस प्रकार ये लेसन आपका यहाँ समाप्त होता है। न्यूमेरिकल आपको लगाना है। धन्यवाद।